भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। विश्राम करें। और अगर आंखें बंद है तो धीरे धीरे आंखें खोल ले। If your eyes are closed, slowly and gradually you will open the eyes. तो सबका स्वागत है आज भगवत गीता के आज के 6वें अध्याय में। Welcome. I welcome you to the 6th day and the 5th chapter of Bhagavad Gita for children. So, I got few messages yesterday that few people had trouble in logging in and they become sad and disappointed. तो कल है ना, हमको काफी मैसेजेस आए कि अरे मीटिंग लॉक है, वेटिंग रूम क्यों है, और थोड़ा दुखी हो गए हम। कुछ लोग तो रो भी रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू वर फीलिंग बैड? बहुत बुरा लगा। Yeah, many of you are raising hands. So, this knowledge of Bhagavad Gita was given to Arjuna when he was sad. So, this is the perfect time to apply the knowledge that you have received so far. Yes? तो भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तभी दिया था जब वो दुखी हो गए थे अर्जुन। इसलिए इस वक्त आपके लिए एकदम सही समय है भगवत गीता का ज्ञान समझने के लिए। और हाँ, अभी देखो आज 6वां अध्याय है, तो आप है ना अपने आप को देखो कि आप कौन से अध्याय पे हो। अभी तो आगे और भी आना बाकी है। हो सकता है इसमें से अभी तक आपसे कोई रिलेट ना किया हो, पर आगे तो देखना कौन सा है आपका। So, you should check on which chapter you are. Right now, we have just covered 5 chapters and today we will be talking about 6th chapter. And all these chapters are the ways how you can bring happiness in your life. So, keep a
eye on what is happening in your mind. है ना? This knowledge is very useful right now. तो ये सारे अध्याय हमको यही बताते हैं कि आखिर में परम शांति कैसे पाना है, और ये अभी ही हमारे काम का है इस क्षण में। So let's start today's session as usual with a story. तो चलो आज की कहानी सुनते हैं। So once upon a time there was a king who has two wives, and from these two wives he has two children. एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी दो पत्नियां थी और दोनों में से एक एक बच्चा था। एक दिन राजा अपने एक पुत्र को गोदी में खिला रहा था, तो दूसरे पुत्र को उसको देखकर लगा कि मुझे भी अपने पिता की गोदी में बैठना है। So once when he was playing with one of the child, the other saw and he also felt, oh, I want to sit in the lap of my father. But the stepmother just didn't allow him to sit. She just thrashed and put the other children down on the ground and asked him to go away and search for God for his father's love. तो ये जो बालक था जिसका नाम ध्रुव था, उसकी सौतेली माँ ने जब ये देखा तो उसको उसकी पिता की गोद से नीचे उतार दिया और कहा कि जाकर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें अपने पिता का प्यार मिले। And she asked Dhruv to pray to the Lord that you get your father's love. Listening to that, Dhruv was very sad and he ran and went to his mother to tell this whole story. So ये सुनकर ध्रुव अपनी माता के पास गया, वो बड़ा दुखी था और सारी कहानी बताई। Mother was a very humble lady. She just told him, okay, if your stepmother has said so, you go to forest and pray to Lord. He will blesses you with the father's love and whatever you wish to. तो माता ने कहा ध्रुव से कि कोई बात नहीं, तुम जाओ जंगल में और भगवान की तपस्या करो। He went to forest, leaving all his palace life. As he was walking in the jungle, he saw Rishi Narada. तो अपना सब कुछ छोड़ के ध्रुव जंगल में चल पड़ा और रास्ते में उसे कौन मिले? महर्षि नारद जी। Narad ji asked him, "Hey little boy, where are you going? This way goes to the dark forest. Why are you going this side?" तो महर्षि नारद जी ने ध्रुव से कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ तो जंगल का अंधेरे वाला रास्ता है। Dhruv very humbly replied that my mother has sent me to pray to God so that I can please the God and get my father's love. तो ध्रुव ने बताया महर्षि नारद जी को, मुझे मेरी माता ने कहा है कि तुम जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो ताकि तुम्हें तुम्हारे पिता का प्यार मिले। Narad ji was surprised to know that little boy is so eager for penance, and he said, "It is not an easy task. You will not be able to do it. So go back, my son." तो महर्षि नारद जी ने ध्रुव से कहा कि तपस्या करना इतना आसान नहीं है बच्चे, तुम वापस घर चले जाओ। Dhruv said, "No, I am determined to do it, and I will do it." Listening to his committed voice, Narad ji blesses the boy with a mantra which he has blessed to will fulfill the Dhruva's wish. तो ये सुन के ध्रुव ने कहा कि मैं तो तपस्या करूंगा, और महर्षि नारद जी इससे प्रसन्न होके उसे एक मंत्र दिए जिससे भगवान को वो प्रार्थना कर सके। After getting the mantra, Dhruv became very excited and he started
praying very religiously, regularly, without any failure. तो मंत्र लेने के बाद ध्रुव बड़ा खुश हो गया और जाते से ही जंगल में उसने तपस्या शुरू कर दी, बहुत ही सिद्धता के साथ. And after looking at the commitment of Dhruva, all the deities, everyone started little shocking, and they all went to Lord Vishnu to request Lord Vishnu to visit to Dhruva and bless him with his darshan. तो उसकी इतनी कड़ी तपस्या देख के तीनों लोक में सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और सभी जाके विष्णु जी से प्रार्थना किए कि कृपया करके आप ध्रुव को दर्शन दे दीजिए भगवान. And Lord Vishnu went to Dhruva and gave him the blessing. And he was blessed to be the still star on the sky so that he can give directions to the whole world. तो भगवान विष्णु ने आखिर उसे दर्शन दिया और उसे पिता के प्यार का आशीर्वाद दिया, साथ ही साथ उसे वरदान दिया कि वो ध्रुव तारा बनेगा, आकाश में अमर रहेगा, जिस ध्रुव तारे को देख के सभी लोग दिशा का पता लगाएंगे. और सिर्फ ये एक ही तारा है जो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है. So this is the only star which remains stable in the sky. All other stars keep on revolving around this star. So what we learn from this story is that anything done with full commitment, full devotion and non-attachment to the fruit will always bear the best result. तो ये कहानी से हमने क्या सीखा कि कोई भी अभ्यास जब हम पूर्ण श्रद्धा और वैराग्य के साथ करते हैं, मतलब उससे बिना जुड़े हुए, बिना फल की अपेक्षा किए, तो वो सर्वोत्तम सफलता देता ही है. So Krishna is explaining us in today's chapter of Dhyana Yoga how to meditate and explains us who is a sannyasi or a true yogi. तो आज कृष्ण हमें बताएंगे कैसे ध्यान करना है, एक सच्चा योगी सन्यासी कौन है. Let's start today's chapter. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. Yogi or sannyasi is not he who is without enthusiasm and without action. तो एक योगी या सन्यासी वो नहीं जो लंबे लंबे बाल करके, चोला पहन के, बिना नहाए गंदे से, और कुछ नहीं करते, गंदे से रहते हैं. वो लोग, you must have seen people, sitting idle, having big hair and doing nothing. Those are not the yogis. So Krishna tells us a yogi is one who performs his duty 100% without depending on the fruit of action. He is a true sannyasi or a yogi, like a mother taking care of the newborn. तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो 100% रह के अपना कर्तव्य करते हैं बिना उसके फल की अपेक्षा किए, जैसे कि एक माँ अपने नवजात शिशु की पालना करती है. Now Krishna tells us how to be a yogi. तो अब हमें भगवान बताते हैं कि योगी कैसे बने. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. To be a yogi, one has to elevate himself from the mind
through the power of self, because he very well knows that this mind is the best friend and also the worst enemy. तो योगी बनने के लिए अपने आत्मबल से मन के ऊपर उठना होता है, क्योंकि वह जो योगी है वो जानता है कि मन ही एक सच्चा मित्र है और शत्रु भी। Now Krishna explains how to meditate. अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान कैसे करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। To practice yoga, one should have a clean place, proper mat to sit on a comfortable height, body still, head and neck straight, gazing at the tip of the nostril, mind relaxed and connecting within with the Atman or the soul. तो भगवान कहते हैं योग का अभ्यास करने के लिए साफ सुथरी जगह हो, सही ऊंचाई पे आसन हो, शरीर स्थिर हो, गर्दन और सिर सीधा हो, नासिका के अग्रभाग पे ध्यान हो, मन विश्राम में हो और अपने आप के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ हो। You know, this is only the one technique. If you are interested in learning more techniques of meditation, you can always contact us. तो ध्यान अगर आपको सीखना है तो हम लोग सिखाते हैं, आप हमको बोल सकते हैं। Next, Krishna explains the secret of the path of meditation. तो अब श्री कृष्ण ध्यान योग का रहस्य बताते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। Yoga is not possible for him who eats too much, nor for him who does not eat, nor for him who sleeps too much, nor for him who is always wakeful. So, the secret of meditation is a balanced lifestyle. तो योगा उसके लिए संभव नहीं है जो बस खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। उसके लिए भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं खाता है, और उसके लिए भी नहीं है जो सिर्फ सोता रहता है, उसके लिए भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं सोता है, उल्लू के जैसे जागते रहते हैं। तो ध्यान का रहस्य क्या है? एक संतुलित जीवन शैली, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। The true yogis unites consciousness with God, see everyone with an equal eye, all living beings in God and God in all living beings. तो जो एक सच्चा योगी है ना, उसकी चेतना ईश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है। वो सभी को एक ही भाव से देखता है और सभी में भगवान को देखता है और ईश्वर भगवान को सब में देखता है। Oh, wow. So I have a question for you now. Can anyone guess how many thoughts comes to the mind in a day? You can just write it on the chat box. तो अभी आप सबके लिए एक सवाल है कि ये हमारे मन में एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने विचार आते हैं? Oh, people are saying infinite. Can't count. Oh my God. ओहो। Oh,
Kavita ji, it's a difficult problem. Brilliant answers. Yes. Okay, relax. So, our research says a human gets more than 6,000 thoughts in a day. तो And, रिसर्च sorry? हाँ, रिसर्च में ये पता चला है कि एक व्यक्ति दिन में करीबन 6,000 से ज्यादा उसके मन में विचार आते हैं. So now, Arjuna is asking Krishna how to deal with such a difficult situation. तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, अभी इसके साथ हम कैसे निपटे. आप देखो, जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, जब पढ़ाई करने बैठे अभी तभी याद आता है यार भूख लगी है कुछ खा लो, प्यास लगती है कुछ पी लो, कुछ मीठा चॉकलेट खा लो, अरे थोड़ा टीवी देख लूं, ये वाला स्पोर्ट्स भी खेलना है, मुझे डांस भी करना है, गाना भी गाना है, ड्राइंग करनी, सब उसी वक्त याद आता है. यू गेट थॉट्स. यस, द ओनली थॉट यू डोंट गेट इज दैट यू हैव टू स्टडी, कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, उसको छोड़ के सब करना है. Yes, it happens, no? When we sit for studying, the first thing that will come to us is sleep. Then second, you will get hungry. Third, you want to get away from your chair and just want to dance. Or fourth, you are hoping that some guest should come to the home and I should be spared from studying. Yeah. So see, so many thoughts come in the mind and it's a big problem. It takes away the focus that we need for studies. Yes. So Arjuna is asking for the solution from Krishna. Let's listen. यहीं से अर्जुन पूछते हैं, बताओ क्या करें. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्. Hey Madhusudan, you are telling me the techniques to quieten the mind, but I don't think one can control this restless, turbulent, strong and unwielding mind. It is very difficult to do so. तो अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, आप मुझे मन को शांत करने के इतने तरीके तो बता रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतने विचलित मन को शांत करना इतना आसान है, बड़ा मुश्किल है. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Krishna says, undoubtedly, O mighty armed, the mind is difficult to control, but by practice and by dispassion, non-attachment, it can be controlled. तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहो महायोद्धा, मैं जानता हूं कि मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है, पर अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित हम कर सकते हैं. See, this is our practice also. Many times we started learning a skill, for example, dance, music, or our favorite video game. So at the first, it is difficult to even clear the level 1. Yeah. But what you do, you play it again. You practice it, and finally you achieve the last level. Yes, happens. In the same way, with practice of keeping the mind stable, quietened, it is very much possible. तो हमने देखा है ना कि हम कोई भी स्तर से शुरू करते हैं, चाहे खेल कूद हो, डांस हो, सिंगिंग हो या वीडियो गेम हो, उसपे स्तर होते हैं, लेवल्स होती हैं. तो शुरू में तो बड़ा कठिन लगता है, पर जैसे जैसे हमारी उसका अभ्यास होने लगता है तो फिर हम सीख लेते हैं, उसका कौशल आ जाता है. वैसे ही मन पर भी नियंत्रित करना संभव है, पर
अभ्यास से हम लोग उसको कर सकते हैं। शिल्पा जी। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। Now Arjun asks, what happens to those who are not able to control the mind, even having faith and other positives in life? तो अब अर्जुन को फिर से संशय आ गया, भगवान ये बताओ कि उनका क्या होता है जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिनमें श्रद्धा भी है, सकारात्मकता भी है, वो नहीं कर पाते, उनका कैसा? Tell me, how many of you are thinking the same thing? They were telling too much things about peaceful mind, peaceful mind. What about others who can't do it? You are thinking, no? Right? So Arjuna is catching your mind also. आप लोग में से कितने लोग ऐसे यही सोच रहे थे कि उनका क्या, जो बेचारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे ना। तो देखो, अर्जुन भी आप ही की तरह सोचता है, मन तो वही है सबका। Now Krishna replies it. श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामृत विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। The one who is not able to successfully quieten the mind and realize the self, O Partha, he will take rebirths and will come in contact with Guru or the knowledgeable ones, and thus will finally reach the goal. तो भगवान कहते हैं, वह जो अपने मन को सफलता के साथ शांत न कर पाया, अपने आप को अनुभव नहीं कर पाया, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा जब तक वो किसी ज्ञानी या गुरु की शरण में आ जाए और अपना लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो लक्ष्य क्या है? What is the goal? Quietening the mind, because a quietened mind is focused and relaxed at the same time. तो लक्ष्य ये है मन को शांत करना, क्योंकि एक शांत मन ही एकाग्रता में विश्राम को अनुभव कर सकता है। Good. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। तो चलिए चैंट करते हैं, लेट्स चैंट टुगेदर। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवा और आहिस्ता आहिस्ता से आंखें खोल सकते हैं। Slowly and gradually, you can open your eyes. Good.